کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بولیے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, صرف رسول پاک کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, صرف رسول پاک کا دین حسن رہ جائے گا. اور ہم سفیر باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے, ہم سفیر باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اور عقل سے کم خواب کے پیشاب پہ نازا نہ ہو, عقل سے کم خواب کے پیشاب پہ نازا نہ ہو. اس تنے جا پہ خاکی کفن رہ جائے گا, اس تنے جا پہ خاکی کفن رہ جائے گا. اور جہاں تمام شاعروں کی شاعری اینڈ ہو جاتی ہے, جہاں تمام شاعروں کی شاعری دم توڑ ہوتی ہے, وہیں سے امام محمد رضا کی شاعری شروع ہوتی ہے. سیدی سرکار والا حضرت فاضل بریلوی شاہ فرماتے ہیں, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اور دو سے بولیے نہ بولیے گا تو ہم بولنا بند کر دیں گے. جی لحد میں, لحد کہتے ہیں قبر کو, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. ارے وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. یہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کل ہو کر تو یہ سوال کر سکتا ہے کہ تمہارے مجدد مجدد اعظم نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات, تو اس دور جدید میں صبح سے شام تک جھوٹ بولنے والا انسان بھی اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اس دور جدید میں, اس دور کے فتن میں ہر انسان آج اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. صبح سے شام تک شراب میں شراب رہنے والا آج ایک شرابی بھی اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے نہیں شرماتا ہے. آج اپنی رات کو نائٹ کلب میں گزارنے والا ایک حرام خور بھی اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ جیسا لفظ اور وصف استعمال کرنے سے نہیں شرماتا. تو کیا ثناء اللہ مصباحی جھوٹ کی کر بول رہا تھا کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ نجات, تو کیا اس شرابی کا نقش قدم راہ نجات کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ اس پاپی کا نقش قدم راہ نجات کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جھوٹے اور کاذب انسان کا نقش قدم راہ نجات کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو کہا کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ نجات, اس غلامان مصطفیٰ سے مراد یہ وہ غلامان مصطفیٰ نہیں ہے, بلکہ اس غلامان مصطفیٰ سے مراد یہ وہ غلامان مصطفیٰ ہے جس نے عظمت اسلام کے خاطر تحفظ حدود اللہ کے لیے, ناموس رسول اللہ کے لیے, عظمت اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جان کو, اپنی جان پر اپنی ہتھیلی کو لے کر ناموس رسول کو قربان کر دیا ہے. ایگزامپل کے طور پر صدیق اکبر غلام مصطفیٰ ہے, ان کا نقش قدم راہ نجات ہے. فاروق اعظم غلام مصطفیٰ ہے, ان کا نقش قدم راہ نجات ہے. عثمان غنی غلام مصطفیٰ ہے, ان کا نقش قدم راہ نجات ہے. حضرت علی غلام مصطفیٰ ہے, ان کا نقش قدم راہ نجات ہے. حضرت سعد سعید غلام مصطفیٰ ہے, ان کا نقش قدم
राह निजात है, हुजूर गौसे आज़म गुलाम मुस्तफा है, उनका नक्शे कदम राह निजात है। हजरत ख्वाजा आज़म गुलाम मुस्तफा है, उनका नक्शे कदम राह निजात है। शहीद आज़म गुलाम मुस्तफा है, उनका नक्शे कदम राह निजात है। अरे यही वो गुलाम मुस्तफा है जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, वो क्या बहुत सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रज़ा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे, रज़ा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे, तुम और राह के इतना दिमाग लेके चले, तुम और राह के इतना दिमाग लेके चले। खुतबा मसनूना के बाद कुरान अज़ीम के पहला पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 28 और चैप्टर नंबर 3 रुकू नंबर भी भूली की मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता, तुम अपने रब की तकफीर कैसे कर सकते हो, तुम अपने रब की तकफीर कैसे कर सकते हो। वो कुंतुम अमवाता, तुम कुछ नहीं थे, तुम मुर्दा थे, मुर्दा, तेरा कोई वजूद नहीं था, तेरी कोई पर्सनालिटी नहीं थी, तेरी कोई शख्सियत नहीं थी, तुम्हारी कोई हस्ती नहीं थी, तुम आदम में थे। फाहयाकुम, तो हमने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई। तुम मुर्दा थे, मुर्दा, तुम अमवाता, तुम मुर्दा थे, फाहयाकुम, तो हमने तुम्हें हयात अता फरमाई। तुम दुनिया में चले आए 10 घंटा 20 घंटा, 10 साल 20 साल, 30 साल 40 साल, 50 साल 60 साल, 70 साल 80 साल, 90 साल 100 साल, अब तो इतना कोई जीता भी नहीं है। जब तक कि मेरी मर्जी होगी तुम दुनिया में रहोगे, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मैं तुमको मौत अता करूंगा। अब देखिए पूरे इंसान के लाइफ का प्रोसेस ऑफ ह्यूमन, इंसान की पूरी जिंदगी और उसके बाद का पूरा प्रोसेस अल्लाह ने सूरह बकरा के एक आयत करीमा में नाज़िल करवा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा कोई वजूद नहीं था, तेरी कोई पर्सनालिटी नहीं थी, वाहयाकुम, तो हमने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई और तुम दुनिया में आ गए। 10 घंटा 20 घंटा 50 साल 100 साल, जब तक कि मेरी मर्जी होगी तू दुनिया में रहेगा। सुम्मा युमीतुकुम, और फिर मैं तुमको मौत अता करूंगा और तुम कब्र के मंजिल में आ जाओगे, कब्र के मंजिल में चले जाओगे। 10 साल 20 साल 50 साल 1 साल करोड़ों साल, जब तक कि मेरी मर्जी होगी तू कब्र में रहेगा। सुम्मा युमीतुकुम, फिर मैं तुमको जिंदा करूंगा, फिर मैं तुमको हयात अता करूंगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और तुम सब के सब मेरी बारगाह में रिटर्न कर दिए जाओगे। अब जरा गौर कीजिए, क्योंकि इंसान यहाँ तक तो देख रहा है कि हम नहीं थे, हम दुनिया में आए, और चूंकि लोग मर रहा है तो यहाँ तक उसका बिलीफ सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग है, चूंकि देख रहा है। लेकिन मरने के बाद वाली जो जिंदगी है, यहाँ पर अच्छे से अच्छों का ईमान का जनाजा निकल जाता है कि मरने के बाद वाली जिंदगी है। ये एक तबका का अकीदा, एक तबका ये कहता है आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुल बईद, कि जब हम मर के मिट्टी हो जाएंगे फिर जिंदा होने का क्या सवाल पैदा होता है। एक ईसाई का ये अकीदा, पूरे ईसाई का ये अकीदा, नथिंग एनी मैटर आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद कोई मामला नहीं है। जब हम मर गए, मिट्टी में मिल गए, फिर हमारा वजूद खत्म हो गया, फिर से दोबारा जिंदगी, ये बात काबिल कबूल नहीं है। एक का यहूदियों का अकीदा था आइज़ा कुन्ना लमरदूदुना फिल हाफ़िरा, आइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा क़ालू तिलका इज़न कर्रतुन ख़ासिरा, कि मरने के बाद जब हम हड्डी हमारी गल जाएगी फिर उसके बाद जिंदगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क़ालू, वो कहते थे तिलका इज़न कर्रतुन ख़ासिरा, अगर ऐसा हुआ तो बड़े घाटे का सौदा है, क्योंकि प्रिपरेशन हमारी तो है नहीं, तैयारी तो फुल हमने किया नहीं है, तो अगर ऐसा हुआ तो बड़े घाटे का सौदा है। लेकिन इन तमाम बातों का जवाब रब तबारक व तआला कुरान अज़ीम के आयत करीमा में जवाब दे रहा है और कसम उठाकर फरमा रहा है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह व ला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा
इमामा अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इमामा बला कादिरीन अला नसबिया सुभान अल्लाह। मुझे कसम है रोजे क़यामत की, कसम है रोजे क़यामत की, और कसम खाता हूँ नफ्से लव्वामा की, हम इंसान को पैदा करने पर दोबारा जिंदगी देने पर मुकम्मल कुदरत रखते हैं। हम इंसान को दोबारा जिंदगी करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा पैदा करना, दुनिया पैदा करना, इस दुनिया को बनाना, आसमान की तख्लीक और जमीन का क्रिएशन और क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स सब तो बेकार हो गया और मैंने किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया। अफहसिबतुम अबसा अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुमको ऐसे ही पैदा कर दिया? तुम जो दुनिया में हो, तुम एक घर बनाते हो, उसके पीछे एक पर्पस होता है। जी तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है 9th में, तो तुम्हारा एक मकसद और पर्पस होता है। तुम अपनी जिंदगी को मकसद लेकर चलते हो और हमने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, इसका कोई मकसद नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है हम एक एक कर को अपनी बारगाह में रिटर्न करेंगे। वो नुफिखा फिस सूरी अल्लाह ताला सूरह यासीन में इरशाद फरमाता है कि जब सूर फूका जाएगा तो पूरी दुनिया के लोग मेरी बारगाह में जिंदा होकर वापस आ जाएंगे। सारे लोग मेरी बारगाह में रिटर्न हो जाएंगे। अब जरा गौर कीजिए यहाँ पर कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सारे के सारे मेरी बारगाह में जमात दर जमात, दौक दर दौक मेरी बारगाह में वापस हो जाओगे। और ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस शराब पीने वाले और तहज्जुद पढ़ने वाले को मैं बराबर कर दूंगा? ऐसा नहीं हो सकता है। और ये तुमने किस किताब में पढ़ लिया? अल्लाह ताला फरमाता है अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, कि मानने वाले और मुजरिम को इकट्ठा कर दूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, रात को नाचने वाली और मुसल्ला बिछा कर रोने वाले एक हो जाएंगे? नेवर पॉसिबल, ये कभी मुमकिन नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर ऐसा तुम सोचते हो मालकुम कैसा तहकुम हो, तुम्हारा जजमेंट रॉन्ग है, तुम्हारा कैलकुलेशन बिल्कुल रॉन्ग है। अमलकुम किताबुन फीहि तदरुसून, अरे तुमने इसकी किस किताब में इस बात को पढ़ लिया है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी नेकी क्या होगा हम वो भी अदा कर देंगे, और जर्रा बराबर बुराई की होगी हम उसका बदला भी जरूर अता फरमाएंगे। इसलिए हजरात फुल प्रिपरेशन किए रहिए, हमेशा तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए। वो लोग अल्लाह की बारगाह में वापस नहीं जाना चाहते, कौन है? उसका भी जवाब दिया कुरान पाक के 11वां पारा सूरह यूनुस में। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना वरदू बिल हयातिद दुनिया व तुमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। वो लोग मेरी बारगाह में विजिट नहीं करना चाहते। क्या फरमा रहा अल्लाह ताला? इन्नल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना, वो लोग मेरी बारगाह में वापस नहीं आना चाहते। ऐसा है हजरात कि हर आदमी इस बात को जानता है कि हमें मरना है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, अरबी हो, अजमी हो, चाहे वो जिस खित्ते से बिलोंग करता हो, जिस फैमिली से बिलोंग करता हो, जिस लेवल, जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हो। अरे मौत को उसने भी माना है जिसने अल्लाह को नहीं माना। मौत एक ऐसी रियलिटी है कि मौत को उसने भी माना है जिसने रसूलुल्लाह को नहीं माना। जी मौत को उसने भी माना है जिसने सिद्दीक़ अकबर को नहीं माना, जिसने इमाम हुसैन को नहीं माना, उसने भी मौत को जरूर माना है। हर आदमी इस बात को जानता है कि हमें आज न कल मरना है। यह अल्लाह का अटल फैसला है। और ये भी अटल फैसला है कि न एक साथ आगे बढ़ना है, न एक साथ पीछे। फइज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जो तुम्हारा फिक्स टाइम है ना, हम उससे एक साथ भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये अल्लाह का वादा है। जी तो हर आदमी इस बात को जानता है कि हमें मरना है, लेकिन मरना कोई चाहता? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सब बात बता रहा हूँ।
मरना कोई चाहता नहीं है, लेकिन मेरे तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है। ये एक अटल फैसला है अल्लाह तबारक व तआला का। अल्लाह तबारक व तआला का ये अटल कानून है, ये लॉ ऑफ इस्लाम है, ये होकर रहेगा। इसलिए हमेशा तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इन्नल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना व रदू बिल हयातिद दुनिया, वो लोग मेरी बारगाह में रिटर्न नहीं होना चाहते। कौन लोग? व रदू बिल हयातिद दुनिया, जो दुनिया की जिंदगी से राजी हो गए हैं, जिनको लगता है कि 4 चक्का गाड़ी ही हमारी कामयाबी है, जिनको ये लगता है कि दौलत और बैंक डिपॉजिट ही कामयाबी है, जिनको लगता है कि बड़े बड़े मोहल्लों में उठ जाना यही कामयाबी है, जिनको लगता है कि इलेक्शन फाइट करके सक्सेसफुल हो जाना इसी में कामयाबी है, वो दुनिया की जिंदगी पे राजी है, वो दुनिया की जिंदगी से राजी है। वो तो मानू बिहा, और उसी पर उनको खूब इत्मीनान हासिल है कि हम यही हमारी कामयाबी है। अगर यही कामयाबी होती तो फिरौन कामयाब होता जी, अगर यही कामयाबी होती तो शद्दाद कामयाब होता, अगर यही कामयाबी होती तो कारून कामयाब होता। लेकिन नहीं, फिरौन मिट गया, शद्दाद खत्म हो गया, जद्दाद की हस्ती मिट गई। लेकिन एक मोइनुद्दीन हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, कुछ नहीं, हाथ में कुरान, सीने में मुस्तफा जान रहमत का किरदार बसा कर आए। आज 100 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन 9 लोगों की नजर में उनकी मोहब्बत जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगी। क्यों? वैसा काम किया, वैसा वर्किंग है उनका, उनके दिल में वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। तो हज़रात मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान अजीम में दूसरी जगह, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अरे बात जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने मौत को क्यों पैदा किया, अल्लाह ने हयात को क्यों पैदा किया, क्यों आपको जिंदा किया? आपने अल्लाह के बारे में कोई एप्लीकेशन दिया था? अरे किसी ने एप्लीकेशन दिया था कि अल्लाह हमको पैदा कर दे? अच्छा, आने का एप्लीकेशन नहीं और जाने का भी एप्लीकेशन क्यों देता है क्या? नहीं, आपके चाहने का पता भी नहीं है। वो मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता किसकी मौत किस सिचुएशन में होगी। भोजपुरी का हरामखोरी वाला गाना सुनते आएगी या मुस्तफा जाने रहमत को जरूर सुनते हुए आएगी, कोई नहीं जानता। वो मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुमको तो ये भी पता नहीं है कि तुम्हारी मौत किस सिचुएशन में होगी। इसीलिए कहता हूँ प्यारे, हरदम पाक रहो, हरदम पाक रहो, कुरान अज़ीम की तिलावत करते रहो। अगर किसी की मौत भोजपुरी के हरामखोरी वाले गाना सुनते आ जाए या गलत लिटरेचर की रीडिंग करते हुए आ जाए, अब सोचो उसका सिचुएशन क्या होगा। लेकिन कसम खुदा की, अगर किसी की मौत हालत सजदा में आ जाए, अगर किसी की मौत नमाज में आ जाए, अगर किसी की मौत नबी पर नाक पढ़ते हुए आ जाए, अगर किसी की मौत नबी पर दुरूद पढ़ते हुए आ जाए, अगर किसी की मौत आयते तिलावत कलामुल्लाह करती हो जाए, आय कसम खुदा की, उस मौत पर मौत भी रश करती है। ऐसी मौत की तमन्ना करो। हजरत जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह कौन इंतकाल कर गया? आपने फरमाया क्यों, क्या हुआ? अर्श झूम रहा खुशी से। हजरत जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह किसका इंतकाल हुआ है? आपने फरमाया क्यों, क्या हुआ? आज अल्लाह का अर्श खुशी से इस्तकबाल में झूम रहा है। तो मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा साथ बीमार था, दौड़े भी आप गए, तशरीफ ले गए। जब आप पहुंचे तो आपको पता चला कि हजरत साद का इंतकाल हो गया है। जब आप अंदर तशरीफ ले गए तो यूं चीरते हुए हजरत साद के घर में पहुंचे, यूं चीरते हुए। अब सहाबा ने देखा, या रसूल अल्लाह, यहाँ तो रूम खाली है और आप ये चीरते हुए जाते हैं। आप फरमाते हैं कि साद के लिए इतने फरिश्ते उतरे हैं कि इस कमरे में कहीं पांव रखने की जगह नहीं। अरे ऐसी मौत मरो कि अल्लाह का अर्श झूमे, ऐसी मौत न मरो कि जहन्नम के फरिश्ते लेने को तैयार हो। ऐसी मौत मरो मुसलमानों, और ऐसी मौत मरो। तो अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया जिंदगी को और मौत को? उसका जवाब जल्दी खत्म कर रहे हैं। उसका जवाब कुरान अजीम के सूरह मुल्क आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया। अच्छा देखिए, जहां हमने पहली आयत क्या पढ़ी थी,
कैफ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता, पहले मौत का जिक्र। और यहाँ भी क्या आ रहा है, अल्लज़ी खलक़ल मौत, यानी पहले मौत आ रही है, बाद में हयात। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, हमने मौत और हयात को किसने पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम जांचे कि तुम में अच्छे अमाल करके कौन मेरी बारगाह में आ रहा है। क्या मकसद है अल्लाह का कि तुम में सनाउल्लाह मिसबाही क्या करके आ रहा है, और ख्वाजा माही साहब क्या करके आ रहे हैं, और हाफिज उमर साहब क्या करके आ रहे हैं, और नजरुल बारी साहब क्या करके आ रहे हैं, और मौजूद साहब क्या करके आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये कौन क्या करके मेरी बारगाह में आ रहा है। हमने इस टेस्ट के लिए पैदा किया इस कायनात को, हमने इस टेस्ट के लिए मौत और हयात को पैदा किया। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला जानता है इस बात को कि ये जो जा रहा है तो क्या करेगा। अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब व शहादा है, लेकिन फिर फरमा रहा है कि हमने इसलिए पैदा क्यों, ताकि कोई ये ना कह सके कि अगर हमको मौका मिलता तो हम बहुत ज्यादा नेकोकार होते या हम बहुत ज्यादा तकवाशार होते। इसलिए तुम कौन सा अमल करके आ रहे हो, ये बता कि ये जो चिल्ला रहा था सनाउल्लाह मिसबाही, तो इसके अंदर, इसके सीने के अंदर क्या था कि लोग मेरी तकरीर को सुनकर वाह वाह करे, या कोई इन बातों पर अमल करके राह रात पर आ जाए। मकसद क्या है, मकसद क्या है सनाउल्लाह मिसबाही के बोलने का। ये सारी चीजें उस दिन वाज़ेह हो जाएगी। तो और दूसरी जगह रब तबारक व तआला फरमाता है, ये 15वां पारा में है, इन्ना जानना माल अर्दी ज़ीनतल्लाह। कितनी खूबसूरत आयत करीमा है, बड़ी खूबसूरत आयत करीमा है। मुसलमानों, कुरान को तुमने छोड़ दिया, कुरान को तुमने छोड़ दिया, सारी चीजें कुरान के अंदर अल्लाह ने तेरे लिए रख दिया है, मगर मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया। कल महशर के मैदान में अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे अल्लाह की बारगाह में, क्या मालूम है, वक़ाल रसूल, रसूलुल्लाह कहेंगे, या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ हमारे रब, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया। आप तो कुरान पकड़े हुए हैं, फिर कुरान छोड़ने का मतलब आपने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया, आपने कुरान अजीम पर अमल करना छोड़ दिया। तो हज़रात मोहतरम, दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना जालना माअल अर्द ज़ीनतल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने इस यूनिवर्स को बहुत खूबसूरत बनाया। इन्ना जालना माअल अर्द ज़ीनतल्लाह, हमने इस यूनिवर्स को, इस कायनात को बड़ा खूबसूरत बनाया। हम ट्राई करेंगे कि तुम में खूबसूरत अमल करके कौन मेरी बारगाह में आ रहा है। हम ये जांचेंगे कि तुम में खूबसूरत अमल करके कौन मेरी बारगाह में आ रहा है। अब आखिरी बात, इसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। खबर में मादीनों का माकुन तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल। 3 सवाल है, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मादीनों का, तेरा दिन क्या है, दीन इस्लाम, मेरा दिन इस्लाम है। माकुन तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरे क्या ओपिनियन है, ये बता। तीसरा क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम हमको बता दीजिए, कोई भी, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, हिंदुस्तान लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हमको बताया जाए जिसका क्वेश्चन शिफ्ट आउट कर दिया जाए। अगर धोखा से ऐसा हो जाता है कि किसी एग्जाम का क्वेश्चन अगर आउट हो जाए, लीक हो जाए, तो उस एग्जाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजेक्ट कर देती है। जी होता है ना, अभी भी नीट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ, एग्जाम फेल, एग्जाम रिजल्ट क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है कि उसका क्वेश्चन आउट कर दिया जाए पहले। अगर ऐसा है तो उस एग्जाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजेक्ट करार देगी। लेकिन मुसलमान हो, ये जो तुम्हारे एग्जामिनेशन है और कब्र में जो तुमसे सवालात और जवाबात होने वाले हैं, करोड़ों दुरूद हो उस नबी रहमत पर कि जिस नबी ने कब्र में तुमसे जो होने वाले सवालात थे वो सवालात भी बता दिए और उसके मुकम्मल जवाबात भी बता दिए। इतना एहसान फरमाया तुम्हारे नबी ने, करोड़ों रहमत हो और करोड़ों दुरूद हो मुस्तफा जाने रहमत पर कि पूरे सवालात भी बता दिए और पूरे जवाबात भी बता दिए। अच्छा, सवाल क्या है,
मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, ये नहीं है कि इसके बारे में क्या कहते हो, इस मर्द के बारे में दुनिया में तुम क्या कहते थे, यानी दुनिया में इनके बारे में तेरा अकीदा क्या था, तेरे ओपिनियन क्या थे। तो कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि हम तो इस तरह कहते थे या इस तरह। आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजरात फूल तैयारी करके रहिए, हमेशा तैयार रहिए, ताकि जब मौत का वक्त आए। फर्क क्या है, एक तरफ कहा जाएगा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, आ इस हालत में आ कि तू अपने रब से राजी हो गया और तेरा रब तुझसे राजी हो। एक तरफ ये है और एक तरफ क्या होगा, यूरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुजरिम को ये बाल को पकड़ करके खींचा जाएगा और जहन्नम में डाला जाएगा। एक तरफ स्वागत हो रहा है, ऐ नफ्स मुतमइन्ना आ, और एक तरफ सर का बाल पकड़ के खींचा जा रहा है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि इधर आना है या इधर आना है, डिसाइड आपको करना है। लेकिन मैं सनाउल्लाह मिसबाही एज ए मोमिन आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा और हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, जिसे मुअद्दिबाना गुजारिश करते हुए ये कि शैतान के रास्ता को छोड़ करके रहमान का रास्ता इख्तियार कर लीजिए, रहमान का रास्ता इख्तियार कर लीजिए। अगर आप कामयाबी चाहते हो, अगर आप कामरानी चाहते हो, अगर तुम फलाह चाहते हो, अगर तुम जफरमंदी चाहते हो, तो दुनिया से रिश्ता तोड़ो और अल्लाह के रसूल से रिश्ता जोड़ो। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। जागना है जागे, अफलाक के साया तले हर्ष तक सोना पड़ेगा, खाक के साया तले की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे है। अल्लाह ताला कुछ कहने सुनने में अगर हमसे गलतियां हो गई हो तो इसे माफ अता फरमाए और पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला